So, hello everyone. Today I will teach you developmental economics. In the developmental economics, we have one topic, that is, we have one unit, namely sustainable. We have in first unit we have sustainable development goals as a main topic. So in today's video, we will talk about sustainable development goal as well as millennium development goals. So what is sustainable development goals? It means satisfying the needs of present generation without doing any compromising in the need of future generation. We should use our natural resources in such a way so that we can save some resources for our future generation. Natural resources are limited, like coal, natural gas, fresh water. We all know that natural resources are limited. We have to use it according to our need, not consume much and much. That we know na, that these are free, water are free, so we will use depending on our wants. But no, as your need. There's a difference between want and need and demand. You have to use water as per your need, not as per your want. So principles of sustainable development: conservation environment. For conservating environment, population management and control, conservation of biodiversity, all kind of life around us will make our natural world, like plants, animals and microorganisms, etc. Sustainable development of society, it helps to keep people healthy because it ensure that our environment is safe and clean, less pollution. It changes society outlook. It teaches being as member of society we should save same resource for our future generation. Conservation for human resources, protect human resources because it ensure human activities should be done in sustainable way. Example, it ensure people are helping to reduce population. They are recycling maintaining proper hygiene. So whatever the first principle of sustainable development: conservation of environment, population management and control, conservation of biodiversity, sustainable development for society, or conservation of human resources. Now we will talk about goals of sustainable development by United Nations. There were 17 goals were provided by the United Nations. That no poverty means remove poverty everywhere. There should not know any name of poverty, no any name of p. No, p means price, p means poverty. We have to pay the price of goods and services. Sorry, I was just joking. So the first goal is that no poverty. Zero hunger. Zero hunger means achieve food security, improve nutrition, good health and well-being. The first is no poverty, second is zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality between countries and among countries, between the countries and among the countries. Among nahi bacche, among. Sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life of land means protect ecosystem, manage forest, prevent land degradation, peace, justice and strong institution, promote global partnership. So these are strategic roadmap government of India, UNSDCF 2023-27. Four pillars were people, prosperity, planet and participation. People, prosperity, planet and participation. So these are the pyramid of six key outcome areas: that empowerment of communities, empowerment of industry, empowerment of individuals, environment and climate, economic growth, quality education, health and well-being.
The concept of sustainable development formed the basis of the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992. Sustainable development was the solution to the problems of environmental degradation discussed by the Brundtland Commission in 1987. Report Our Common Future in 2015. All 193 members states of the United Nations adopted the Agenda 2030 in 2015, because before 2015 we were MDGs, means Millennium Development Goals, but in 2015 all 193 members in MDGs there were only 189 countries, but in 2015 193 member states of United Nations adopted the Agenda 2030, comprising 17 SDGs and 169 targets. In this there are 166 targets, but in that I will show you 169 targets as a plan of action for people, planet and prosperity. People, prosperity, planet and participation. The goals aims to achieved in the next 15 years, that is from 2015 to 2030. So what are the trick that we have to learn all the 17 goals of SDGs? That is, suppose I have a baby. So what I want, firstly, no poverty. देखो, अगर मैं तुमको हिंदी में बताऊँ तो हम क्या चाहेंगे कि कोई, जैसे देखो तुम्हारा कोई बच्चा हो रहा है, कैसे, तो तुम क्या चाहोगे, अपने बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करवाओगे ना, उसको अफोर्डेबल, उसको लग्जूरियस लाइफ तुम चाहोगे वो जिए, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले तुम चाहोगे कि बच्चा आए उससे पहले मेरे पास पैसे होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होगा, फिर तुम उसको खाना खिलाओगे तो फूड सिक्योरिटी, फिर उसके हेल्थ पे ध्यान दोगे, फिर तुम उसके एजुकेशन, फिर तुम उसको एजुकेशन दोगे, है ना। पहले बच्चा आया तो पहले तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम उसको फिर खाना खिलाओगे, उसके हेल्थ पे ध्यान दोगे, उसके एजुकेशन पे ध्यान दोगे। फिर देखो जेंडर इक्वालिटी, यानी कि देखो पहले बच्चा का ये मतलब ये बच्चे का ग्रोइंग स्टेज था, मतलब ये बहुत छोटा था जब, तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, फिर तुम उसको खाना खिलाओगे, उसके हेल्थ पे ध्यान दोगे, फिर उसको एजुकेशन दोगे, फिर उसको स्कूल में दाखिला करवाओगे। तो जब स्कूल में जाओगे तुम, तो फिर वहाँ देखोगे कि जेंडर इक्वालिटी वहाँ होना चाहिए। एग्जाम्पल, तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी लड़की है, जो भी, तो लड़के लड़की के साथ में बैठने चाहिए, तो जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए स्कूल में। फिर देखोगे कि चलो बच्चों को प्यास लगा स्कूल में जाते ही, तो वहाँ पे क्या क्लीन वाटर है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, साफ़ सुथरी जगह है कि नहीं, वो देखोगे। उसके बाद लाइट भी देखोगे, लाइट भी है कि नहीं, पॉल्यूशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद देखो बच्चों का एजुकेशन हो गया पूरा, ये अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ये स्कूलिंग लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी ख़त्म। उसके बाद बच्चा जॉब में आया, तो जॉब में आते ही तुम क्या देखोगे कि अच्छा खासा सा जॉब ज्वाइन कर ले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डिसेंट वर्क हो, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर देखोगे तुम कि नहीं बेटा, तुम जॉब क्विट कर दो, तुम अब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया बच्चे। फिर तुम बोले कि नहीं बेटा, अब तुम समाज के लिए भी कुछ करो, तुमने बहुत पैसा कमा लिया, तो फिर रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। फिर बोलोगे तुम उसको, नहीं बेटा आप बिजनेस खोलो, चलो। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कम ईंटें लगाओ लेकिन टिकाओ। तुम उसको क्या बोलोगे, कंजूस बन जाओ, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि सस्ते में निपटा दो। लेकिन फिर उससे क्या होगा, सपोज़ करो कि बाढ़ आया, तुम्हारा लड़का कोई बिल्डिंग बना रहा है, बाढ़ में तो बिल्डिंग गिर गया, और फिर जो लोग थे वो बह गए, मतलब समझ रहे हो, डूबने लगे लोग। तो फिर बोलोगे लाइफ बिलो वाटर, तुम्हारा इंसान मछली बन गया, डूबने लगा वो इंसान, ठीक है। फिर वो तैरते तैरते ज़मीन पे आया, लाइफ ऑन लैंड। फिर उसके बाद पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जब वो तैरते तैरते ज़मीन पे आ गया, बहुत लोग डूब भी गए, उसके बाद उसको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, उसको पीस चाहिए, है कि नहीं। उसके लिए स्ट्रॉन्ग जस्टिस हमारा हो, मतलब जस्टिस इंस्टीट्यूशन हमारा वैसा हो, ठीक है। फिर सबके पैसे लौटाओ, रिश्तेदारों की मदद लेकर, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ठीक है। उसके बाद समझ गए तुम, बच्चा जन्म लिया, बच्चा स्कूल गया, फिर जॉब किया, फिर बिजनेस किया, फिर जस्टिस पे आया। समझ रहे हो कि पहले तुम चाहोगे कि गरीबी ना हो, तो मेरे पास पैसा हो, ठीक है। उसके बाद बच्चा आया, बच्चा को तुम खाना खिलाओगे, उसके हेल्थ पे ध्यान दोगे, ठीक है कि नहीं।
फिर उसको स्कूल में डाल दो, उसके एजुकेशन पे ध्यान दोगे। जब उसके स्कूल में गए तो देखोगे कि अरे इक्वालिटी है कि नहीं, लड़का लड़की साथ में बैठ रहे हैं कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी। फिर देखोगे अरे क्लीन वाटर सैनिटेशन है कि नहीं, ये देखोगे। उसके बाद तुम क्या देखोगे कि चलो सब कुछ तो ठीक ठाक चल ही रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। फिर तुम वो जॉब में चला गया। जॉब में तो मतलब अच्छा डिसेंट वर्क हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। उसके बाद इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ध्यान दोगे, कंपनी को आगे बढ़ाओगे। फिर उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी, समाज में असमानता को ख़त्म करने के लिए तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ा, ठीक है। फिर तुम अपने बच्चे को बोले कि नहीं बेटा अब तुम अपना खुद का बिजनेस खोलो। फिर वो बिजनेस खोला, ठीक है। उसके बाद बिजनेस खोला, उसके बाद तुम बोलोगे थोड़ा कंजूस बनो बेटा, सस्ते में काम निपटा दो। सस्ते में काम निपटा दिया तो उसका घर टूट गया, बाढ़ आया, तो जब घर टूट गया तो सारे लोग बह गए पानी में। अब सारे लोग बह गए तो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, इंसान डूबने लगा, मतलब लाइफ बिलो वाटर। फिर वो लैंड पे है, लाइफ ऑन वाटर। फिर पीस एंड जस्टिस, फिर उसके बाद पैसा चुकाया। तुमने सिद्धार्थ से देखा नहीं, ये पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल। हाँ चलो, तो ये था, बहुत इंटरेस्टिंग था यार, मेरे को भी मज़ा आया था सुनने में। तो मैंने सोचा तुम लोग को बताया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। तो तुम समझ गए ना सस्टेनेबल। ओह शिट यार, आज क्लास में बात हुई थी कि कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, और मैंने 7 कह दिया था। 8 गोल है, 17 इसमें है भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 17 गोल है 2015 से 30 तक। इसके बाद उससे पहले आया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2002-2015 तक। अब 15 ईयर गैप किया गया था। 8 गोल्स था कि रिड्यूस एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, reduce extreme hunger and poverty, achieve universal primary education। सबसे पहले reduce extreme hunger and poverty, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality। what is child mortality? पर 1000 लोगों में कितने बच्चों का डेथ हो रहा है अभी, मोर्टेलिटी रेट। अभी तो घटा है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, प्रमोट ग्लोबल पार्टनरशिप। तो तुमने क्या सीखा बेटा यहाँ से कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हमारा 8 था, इसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बताया गया है। इसका ट्रिक कैसे है याद करने का? पढ़ते पढ़ते ज्ञान करेंगे, माँ धन सम्मान ज्ञान। पढ़ते पढ़ते गेन करेंगे मान धन सम्मान ज्ञान है। अरे यहाँ पॉवर्टी एंड हंगर, फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिर मैटरनल हेल्थ, फिर HIV, एड्स, मलेरिया से ओवरकम कैसे करें, फिर है कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। हाँ, और ये क्या है बेटा? ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सितंबर 2000 representatives from 189 countries. So in millennium there are 189 countries, and in sustainable there was 193 countries. So representatives from 189 countries met at the Millennium Summit in New York to adopt the UN, United Nations Millennium Declaration, with now widely known as Millennium Development Goals. Government set a date of 2015 to meet the MDGs. There were 8 goals in Millennium Development Goals, 8 development goals, 18 targets and 48 indicators. But in Sustainable Development Goals, there were 193 members, 169 target. But in Millennium, there are 18 targets, 48 indicators. Indicators क्या होता है? ये है हमारे indicators, तुमको बताएंगे, ठीक है। So the Millennium Development Goals are 8 goals to be achieved by 2015 that respond to the world's main development challenges. The 8 Millennium Development Goals break down into 18 quantifiable targets that are measured by 48 indicators. The Millennium Development Goals are drawn from the actions and targets contained in the Millennium Declaration that was adopted by 189 nations and signed by 147 क्या लिखो भाई, heads of state and government during the United Nations Millennium Summit in September 2000.
सो मिलेनियम अचीवमेंट्स क्या रहा हमारा विद रिगार्ड टू पॉवर्टी। सो पॉवर्टी में नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन 1.25 US$ पर डे हैज़ डिक्लाइन मोर देन हाफ। Proportion of undernourished has fallen from 23% to 13%. Under 5 age mortality reduced by 53%. Adolescence birth rate एंटीनल क्या लिखी हो यार, एंटीनल विजिट कवरेज, भाई हम तुमको पढ़ के बताएंगे, ठीक है, हमको पता नहीं है, अभी पढ़ के बताएंगे। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, नंबर ऑफ मीजल्स केस है भाई वो, HIV इन्फेक्शन हैज़ रिड्यूस बाय 40%। मतलब बहुत सारे ये अपने अचीवमेंट्स बताएंगे मिलेनियम डेवलपमेंट का क्या हुआ। पर अगर मेरे से पूछो तो मैं बताऊंगी कि भाई कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, इसीलिए फिर से 15 ईयर गैप लिया गया, SDGs लाया गया, और हाँ कुछ ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं भाई। तुम लोग देख सकते हो कि कितना कितना परसेंटेज ये है। अब तो गवर्नमेंट तो बढ़ा चढ़ा के बोलेगी ही, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, वाइजली चीज़ों को चूज़ करना है कि नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी तरह हम भी वही हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।